Good morning, students. Today we are starting with the new chapter, chapter number 4, reconstruction of partnership. So, friends, you know that we have completed chapter number 1, introduction to partnership, number 2, final account just now, right? And the third one is the valuation of goodwill. So, better hoping that you are practicing in a better way, right? So, friends, today we are starting with the chapter reconstruction of partnership. So friends, what are the topic is there that we have to discuss? So let's see. The first is the introduction. What are the changes in the profit and loss ratio between the considering partner? What is revaluation? How to distribute the profit and the loss? And last is the goodwill. So let's see, friends, how to do. So friends, first of all, we have studied the nature of the partnership and final account in the previous chapter. So what are the reason for the change in partnership? Now what is the topic? Topic is reconstruction. Reconstruction means what? तोड़ के फिर से बनाना. That is known as, friends, reconstruction. तो reconstruction का मतलब ही वही है कि आपको नया करना है. So how it's possible? तो क्या रीजन है? क्या रीजन है रिकंस्ट्रक्शन के? First reason is the changes in the ratio of the profit and loss, right? Changes in the ratio of profit and loss of between the continuing partners. अंदर ही अंदर क्या करते हो लोग? रेशियो चेंज कर देते. The changes in the ratio of profit and loss sharing between the continuing partner. दूसरा है एडमिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर. किसी नए पार्टनर को हम बुला लेते हैं. दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. तीसरा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. तीसरा क्या है? रिटायरमेंट. कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, दैट इज रिटायरमेंट. या फिर किसी पार्टनर का डेथ होता है. तो फ्रेंड्स, हम ऐसे देखे जाए तो देर आर थ्री मेन रीजन फॉर द चेंजेस इन द पार्टनरशिप. फर्स्ट इज चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. चेंज कर देते हैं अंदर, चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. नंबर 2, एडमिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. एडमिशन करते हैं. और तीसरा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. क्या करते हैं? रेशियो चेंज करते हैं. उसके रीजंस बहुत सारे. एक पार्टनर काम करता है, दूसरा पार्टनर काम नहीं करता है. एक पार्टनर को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है. एक पार्टनर टाइम नहीं दे सकता है. बहुत सारे रीजन हैं कि हम रेशियो अंदर क्यों चेंज करते हैं. तो क्या देखना है हमें? देखते हैं. देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है सैक्रिफाइस रेशियो किसे कहते हैं. सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है जब एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अपना शेयर दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस. सो लेट्स सी. When there is a change in the ratio of profit and loss sharing of existing partner, most important, when there is a change, badlav, when there is a change in the ratio of profit and loss of existing partner, a portion of the profit of certain partner is reduced. Certain partner मतलब सबका नहीं. जैसे कि ए बी सी है, तो ए सी को दे रहा है, ऐसा मान के चलते हैं, तो ए का शेयर कम होगा, बी का नहीं. Portion of certain partner is reduced, that is they get less share, उनको कम शेयर मिलता है as compared to what they get to use to get before. पहले जितना मिलता था उससे कम मिलेगा. This reduced share of profit is called sacrifice ratio. So what is, friends, sacrifice ratio? When there is a change in the profit and loss of the existing partner, a portion of the profit of certain partner is reduced. A portion of the certain partner is reduced, that is they get less share, उनको कम मिलता है, that they get less share as compared to what they get used to get before. मिलता. This reduced share of profit, ये reduced share को हम क्या कहते हैं? Sacrifice ratio. क्या कहते हैं? Sacrifice ratio. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. तो व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? When there is a change in the profit and loss ratio of existing partner, क्या लिखा है? When there is a change in the ratio of profit and loss existing partner, a portion of the profit of certain partner is reduced.
a portion of certain partner is reduced, that they get less share, as compared to what they get used before, यानी पहले जितना मिलता था। यानी क्या लिखना है, बहुत सिंपल में हम क्या लिख सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, when there is a change in the profit and loss ratio of the existing partner, certain partner share is reduced. Certain partner share is reduced. That reduced part is known as sacrifice ratio. ठीक है, वापस क्या लिखना है, when there is a change in the profit and loss ratio of the existing partner, a portion of the certain partner is reduced. This reduced share is known as sacrifice ratio. आगे बढ़ते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सम तो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ये हुआ अपना, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सारे सम्स है इसके, दिस आर ऑल सम्स। यस, अब दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, गेनिंग रेशियो। एक्चुअली बोले जाए तो सैक्रिफाइस एंड गेनिंग आर वन एंड द सेम थिंग, बस थोड़ा सा फर्क है। तो व्हाट इज गेनिंग, when there is a change in the profit and loss sharing ratio of partner, share of the partner of some partner reduce and the other partner of profit increases. So some partner share of profit is higher than the prior one. The higher share of profit of partner is called gaining ratio. तो सिंपल में क्या लिख सकते हैं, when there is a change in the profit and loss, क्या लिखेंगे, when there is a change in the profit and loss ratio of the existing partner, certain partner share is increased. Certain partner share is increased. That increased part of share is known as gaining ratio. आया समझ में, क्या लिखेंगे, when there is a change in the profit and loss ratio of existing partner, certain partner share is increased. इंक्रीज बढ़ जाता है, दैट इंक्रीज पार्ट ऑफ शेयर इज नोन एज गेनिंग रेशियो। इतना इजी है। फॉर्मूला भी है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। उसमें क्या था, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो, उल्टा चलता है इसमें। ये भी हुआ। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा, तो क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स, हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो सैक्रिफाइस रेशियो और एक गेनिंग रेशियो। चलो बोलो मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस, बोलो क्या है। यस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, certain partner share is reduced. That reduced share is known as sacrifice ratio. Clear? अब बताओ व्हाट इज गेनिंग रेशियो। when there is a change, आपने ध्यान दिया तो दोनों आंसर सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। when there is a change in the profit and loss ratio of existing partner, certain partner share is increased. Certain partner share is increased. That increased part is known as gaining ratio. That increased part is known as gaining ratio. Clear? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या कहना चाहते हैं। इन शॉर्ट, whenever the calculation is made by gaining formula and if the answer is in positive, क्या लिखा है, पॉजिटिव प्लस में है, then it is gain, right? जब प्लस में आता है तो गेन हो जाता है। ध्यान दिया आपने क्या बोला, गेन में आंसर प्लस में है तो गेन रहेगा, और गेन में आंसर अगर माइनस में है तो सैक्रिफाइस हो जाता है, राइट? गेन में प्लस है तो गेन है, गेन में माइनस है तो सैक्रिफाइस, उल्टा होता है। वैसे ही सैक्रिफाइस में प्लस आए तो सैक्रिफाइस होगा, और सैक्रिफाइस में माइनस आए तो गेन होगा। क्लियर? तो क्या देखा हमने, हमने देखा रिकंस्ट्रक्शन। तो व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? द थ्री मेन रीजन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के थ्री मेन रीजन है। पहला रीजन है ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अंदर ही अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं,
दूसरा हमने पढ़ा ड्यू टू एडमिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक किसी नए पार्टनर को एडमिट करना। तीसरा है ड्यू टू रिटायरमेंट और अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर छोड़ के जाना या किसी पार्टनर का डेथ हो जाना, तभी भी रेशियो चेंज करते हैं। फिर हमने पढ़ा सैक्रिफाइस रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन? सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स when there is a change in the profit and loss ratio of existing partners, certain partner share is reduced. That reduced share is known as sacrifice ratio. दूसरा है कौन सा? गेनिंग। गेनिंग में क्या लिखेंगे? when there is a change in the profit and loss ratio, certain partner share is increased. That increased part of share is known as gaining ratio. अब थोड़े शॉर्ट में देखो क्या लिखा है। जब when we are doing gaining ratio, आंसर प्लस में आए तो गेन बोलेंगे और माइनस में आए तो सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस में अगर प्लस में आए तो हम बोलेंगे सैक्रिफाइस और माइनस में आए तो गेन। यहां तक देखा हमने। अब डिफरेंसेस थियोरेटिकल पॉइंट है वो तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखने जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करना पड़ता है। रिवैल्यू का मतलब क्या होता है? फिर से वैल्यूएशन करो, आप फिर से करो, क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होता है? बढ़ता भी है घटता भी है, तो हर साल हमें ये करना पड़ता है। एसेट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लायबिलिटी का वैल्यू भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो एक नया टॉपिक पे हम जा रहे हैं। देखो, the book value of assets and liabilities recorded in the books of partnership firm when brought at present value is called revaluation of asset। ठीक है, तो ये देखो इसका डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन है जो थोड़ा आई थिंक इजी रहेगा, ये रहा देखो। ए स्पेशल अकाउंट इज ओपन, देखो, ए स्पेशल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म to record the accounting effects of the revaluation of assets and liability. This account is called the revaluation account. बहुत सिंपल बोला है, क्या है? A special account is opened in the books of the partnership firm. A special account is opened in the books of partnership firm to record the accounting effects of the revaluation of assets and liability. That is known as revaluation. तो क्या क्या देखा हमने? व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप देखा हमने। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो हमने देखा। व्हाट इज गेनिंग रेशियो देखा, राइट। गेनिंग में प्लस आए तो हम गेन बोलेंगे, माइनस आए तो माइनस बोलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन भी हमने देखा। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट, देखो क्या लिखा है, एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो हम क्या कहते हैं? उसको प्रॉफिट कहते हैं। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो हम उसको प्रॉफिट कहते हैं। अगर एसेट का वैल्यू कम होगा तो हम उसे लॉस कहते हैं। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो हम उसको लॉस कहते हैं। लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा तो हम उसको प्रॉफिट कहते हैं। यानी जब भी आपको फायदा है, जैसे कि एसेट बढ़ेगा तो फायदा, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा, देखो दोनों में प्रॉफिट आया हुआ है। यानी इंक्रीज इन एसेट प्रॉफिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी प्रॉफिट, डिक्रीज इन एसेट लॉस, इंक्रीज इन लायबिलिटी लॉस। आगे अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने, समझ में आ रहा है? एसेट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया और हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट। लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो हमारे लिए लॉस है। तो ये हुआ इसके थोड़े कंसेप्ट। इसका ये आपका जर्नल एंट्री है, देखो क्या लिखा है। When there is increase in the value of asset, एसेट जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, और कंसेप्ट हम जानते हैं कि प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, राइट। When there is an income, it's a credited. नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था, if there is an income, it should be credited. तो इसलिए एंट्री क्या आया? रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जो भी एसेट है वो डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपको फायदा है।
दूसरा है रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। ये क्यों? जब आपको नुकसान होता है, देखो बीइंग द एसेट्स वेर डिक्रीज, कम हो जाता है, और यहां लिखा है बीइंग द एसेट वैल्यू इज इंक्रीज। जब इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तीसरे बोला है व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और डिस्काउंट रिजर्व। अगर डाउटफुल डेब्ट और डिस्काउंट रिजर्व में प्रोविजन देना है, प्रोविजन देना है तो मतलब नुकसान ही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व एंड टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस, तो पहले ये सोचो क्या फायदा है कि नुकसान है। अनरिकॉर्डेड एसेट से फायदा ही होगा, एक्रूड इनकम से फायदा होगा, प्रीपेड एक्सपेंस से फायदा होगा। इन तीनों में फायदा है, तो रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिटेड, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरह से। फिर लिखा है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटी, क्योंकि नुकसान है। अगर लायबिलिटी कम होता है, लायबिलिटी कम होता है तो फायदा, रेस्पेक्टिव लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो तो बात की बात है, तो क्या क्या समझाया मैंने आपको, वापस एक बार देख लेते हैं हम। चलो क्या क्या पढ़ा हमने। पहला, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है, सोचो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो हमें फायदा है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। दूसरा, when there is a decrease in the value of asset, एसेट का वैल्यू अगर घटेगा, अगर एसेट का वैल्यू घटेगा तो फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, एसेट का वैल्यू घटेगा तो नुकसान है, तो एंट्री रिवैल्यूएशन एसेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। थर्ड वन, when there is a provision for doubtful debt or discount reserve on debtor, तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर अकाउंट, नुकसान है। अनरिकॉर्डेड एसेट, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इससे फायदा है कि नुकसान है? अनरिकॉर्डेड एसेट से फायदा ही है, एक्रूड इनकम से फायदा है, तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ में देखो, अगर लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है तो हमको नुकसान है, रिवैल्यूएशन टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटी। फिर लायबिलिटी कम हो रहा है तो रेस्पेक्टिव लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। एंट्री अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड है तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो क्या क्या देखा, रीजंस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप देखा, 3 रीजन थे। सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में पढ़ा, गेनिंग रेशियो के बारे में हमने देखा, फिर रिवैल्यूएशन के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्पेसिमेन है, ये आपको 1 टाइम लिखना है। जर्नल एंट्री जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो 1 टाइम आपको नोटबुक में आपको कंप्लीट रखना है, राइट। ये स्पेसिमेन है, इसका कैसे होता है ये सम आज नहीं करना है हमें। अब एक और टॉपिक बाकी है, मैं वहां ले जा रहा हूं आपको। देखो कितने सारे सम्स हैं और इसका वेटेज है 5 मार्क्स, 5 मार्क में इतना पूछ रहे। अब इसके बाद के चैप्टर्स ये रहा, यस।
ये है अपना नया टॉपिक और वो हम कह सकते हैं कि चलो लास्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हमें बांटने के लिए बात हो रही है। तो अब देखो क्या करना है इसमें। इसमें देखो पहली चीज बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब देखो मैं रीड कर रहा हूं, free reserves created from the divisible profit of a partnership firm and the balance of the accumulated profit are of current partners of the firm. General reserve, workman accident compensation fund, etc. are called reserve fund, and credit balance of profit and loss account is called the accumulated profit. At the time of reconstruction of partnership firm, reserve fund and the balance of accumulated profit are distributed among the existing partner in the old profit and loss sharing ratio. यानी बोलने का मतलब ये है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे पास जो भी प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व पड़ा है, एक्सीडेंट कंपनसेशन पड़ा है, वो सब हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। अब कौन से प्रॉफिट हो सकते हैं? देखो, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, बहुत सारे नाम है। कौन से है? बोलो कौन से नाम है? जस्ट 1 मिनट। यस, कौन से नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू ओल्ड पार्टनर्स। इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। चलो वापस एक बार, क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है, जनरल रिजर्व ये भी डेबिट होता है, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व ये भी क्रेडिट है तो डेबिट हुआ, रिजर्व फंड ये भी क्रेडिट है तो डेबिट हुआ, कंटिजेंसी रिजर्व ये सब बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्या करेंगे हम? इसको डेबिट करेंगे और किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे। फिर ये अलग अलग करके दिया हुआ है। अब एक्यूमुलेटेड लॉस, लॉस में देखो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये रिसर्च, ये सब तो हमारे फिलहाल टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने फ्रेंड्स? एक तो क्या क्या टॉपिक पढ़ा हमने? फर्स्ट चीज हमने पढ़ा रीजंस, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन कैसे करना है, उसके जर्नल एंट्रीज, स्पेसिमेन, और लास्ट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो ये सम आता है 3 मार्क्स के लिए आता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इटरेशन 10 है, ये पूरे बड़े सम्स आते हैं इसके। एक्सरसाइज देखते, एक्सरसाइज में बोलते जाना। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। बोलो क्या बनाते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में ट्रेडिंग बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन बनाना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस? बोलो कौन सा है इसमें जाना पहचाना नाम? रिवैल्यूएशन अकाउंट, सही है।
What are the effects given when the value of asset increase at the time of reconstruction of partnership? Asset अगर बढ़ेगा तो आप क्या दोगे? Addition in asset, asset का value बढ़ाना है and revaluation account will be credited. Asset का value बढ़ाना है और revaluation का account क्या करेंगे? Credited. What are the effects given when the value of liability decreases? Decreases कम हो जाता है तो क्या करना, ऐसा पूछा है. Decrease होता है तो क्या करेंगे? Subtract from the liability and revaluation account will be credited. क्योंकि liability क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है. Liability क्या हो रहा है? कम हो रहा है. फोर्थ में पूछा है revaluation account is also known as which account? कौन से account का नाम है? Profit and loss adjustment account. क्या नाम है? Profit and loss adjustment account. फिफ्थ में बोला है in which ratio profit or loss of revaluation distributed to the partners? कौन से रेशियो में बांटा जाता है? बोलो. ओल्ड रेशियो. सब कुछ कौन से रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो. 6. What is accumulated profit as per the balance sheet is shown on the time of return? Accumulated profit का कहाँ लेके जाना है? Accumulated profit है तो हम पार्टनर्स को बांटते हैं. याद है? टू क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. सी ऑप्शन. 7 ने पूछा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड माइनस न्यू. इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेन का है न्यू माइनस ओल्ड. At the time of reconstruction of partnership, investment are shown at dash. Investment are shown at market value. कौन सा value, friends? Market value. What is workers profit sharing fund? Workers profit sharing fund क्या होता है जो हम नहीं बांट सकते? वो है liability of balance sheet after reconstruction. Liability है वो. Answer the following question in one sentence. What is reconstruction of partnership? Reconstruction of partnership means changes in the partnership due to several reasons. What is revaluation account? याद है? A special account is maintained in order to record the increase or decrease in the value of asset and liability. That is revaluation. What is sacrifice ratio? Due to change in the profit and loss ratio, certain partner share is reduced. This reduced share is known as sacrifice ratio. Gaining. Due to change in the profit and loss ratio, certain partner share is increased. This increased share is known as gain ratio. How is the consolidated profit distributed? The consolidated matlab accumulated. Accumulated profit is distributed in old ratio. In which account? Revaluation account, profit and loss transfer. In partners capital या फिर partners current account. At which value assets and liabilities are shown in the balance sheet after revaluation? At market value. What is the another name of revaluation account? क्या नाम है दूसरा? The other name of revaluation account is profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account. Okay, so friends, next batch से हम शुरू करेंगे टॉपिक. स्पेशली एक्सरसाइज ही लेंगे हम पहले और इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क करना है. सो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन. टेक केयर. राइट, क्या क्या पढ़ा ध्यान है ना? पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया. ओके, तो एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना. पहला टॉपिक था उसका डेफिनेशन, रीजंस, सैक्रिफाइस, गेनिंग, याद है? फिर रिवैल्यूएशन, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज, स्पेसिमेन, फिर स्पेसिमेन के बाद हमने मेन पॉइंट वही कहा तक स्पेसिमेन तक ही किए हमने. हाँ, उसके बाद तो एमसीक्यू में आ गए थे. ओके, चलो. ओके देन, थैंक यू.